Hello and welcome back, everyone. I'm Yash Raut, your host of the podcast Change Equals Evolve, and today we have our guest Aniket Vivare with us. So, a boy from Jalna lands up a job at Dublin, Ireland, with a very high package. So, let's know what his journey was. So, all to you. Yeah, hi Yash. Hello. First of all, congratulations to you for the launch of your podcast, and you are really doing well. So Thank you. So myself Aniket Vevhare, and I was born and brought up in Jalna city, but I did my engineering in Pune University from Pune University, and I almost after completing my engineering, I studied I got placement from my college itself, and then I almost worked for 3 to 4 years. For 3 years I worked for Tech Mahindra, and then for 1 year I was in Capgemini. So after that I got an opportunity to study abroad. So I opt DBS college. So it is Dublin Business School, and Okay. it is in Ireland. So I got an opportunity there to pursue my MS. So I did my MS in Master of Science in Business Analytics, and it's a great course. So it's just a 1 year of course, and then I was lucky enough to get job as soon as I completed my masters. So yeah, this was just a short introduction about myself, like how I ended up there. Okay. So, the school which you studied in abroad, that is in Dublin, Ireland. So, basically, it is an what do you call it? A master course college, or is it a normal college like you can do Yeah, BTech yeah, and it all? is a normal college. You can do graduate, bachelor's also, and you can do masters as well. Also there is a PhD course available, so you can pursue PhD as well there. So yeah, but Acha. for me, I did my masters, and the plus point there is it has only 1 year. In 1 year you can finish your masters, and you can grab the job as soon as you complete your masters. So it's Acha. as far as for other countries like US and all, they have 2 years of masters, but for Ireland it's just 1 year. So that's the plus point. Like you can end up your education too fast, and then you can have a job, and you can Okay. yeah. So मतलब ये पहले से decided नहीं था क्या कि you have to opt for this type of course and pursue your master's degree, or were you planning before also when you were at the job of Tech Mahindra, या फिर बस Capgemini आप गए और फिर वहाँ से कोई चांस मिला, so you decided? नहीं, एक्चुअली मुझे एक एक्सपीरियंस गेन करना था. तो मेरे ऑलरेडी वहाँ पर दोस्त थे, उन्होंने मुझे ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पर मेनली तुम कितना एक्सपीरियंस तुमको है आईटी फील्ड में, जो जहाँ पर भी तुम जा रहे हो, तो वो प्रायोरिटाइज तुमको एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही करते हैं. मतलब ठीक है, तुम एमएस कर रहे हो, तुम सीख रहे हो, बट एट द एंड तुमको जॉब वहाँ पर मिलेगी तो सिर्फ तुम्हारा एक्सपीरियंस देख के ही. फ्रेशर्स को भी मिलता है, ऐसा नहीं है, बट दे हैव टू स्ट्रगल अ लॉट टू गेट द जॉब. बट तुमको अगर एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली वो तुमको प्रायोरिटाइज करेंगे. तुम्हारा सीवी जल्दी सिलेक्ट होगा, तुम्हारा मतलब सब टर्म्स में तुम एटलीस्ट मेरे ख्याल से तो भी एटलीस्ट 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस रहना इज़ गुड. लाइक Okay. या बट फॉर एडमिशन प्रोसेस ऑल्सो जिसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, सो वो जल्दी गेट थ्रू हो जाता है फॉर एडमिशन पर्पसेस. हाँ इनिशियली एडमिशन तुम ऑब्वियसली तुमको तुम्हारा एकेडमिक्स देखते हैं वो लोग. तुमने इंजीनियरिंग मतलब मेरे इसमें क्या हुआ था, मैं इंजीनियरिंग किया था 4 साल का. मेरे इंजीनियरिंग एकेडमिक्स मेरा अच्छा था पूरा 4 साल. ओके. और मुझे एक बार भी मतलब वाईडी वगैरह वैसा कुछ सीन नहीं था. या फिर फॉर इंस्टेंस CGPA कितना था तो भी? मेरा अराउंड मतलब CGPA 70% अबव ही था Okay. ओवरऑल ओवरऑल. 4th ईयर.
हाँ, और लास्ट ईयर मतलब ओवरऑल मेरा डिग्री में फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन ही था। तो ऑब्वियसली वो देखते हैं जब भी तुम्हारा एकेडमिक्स उनके पास जाता है। प्लस मैं बोलता हूँ कि कुछ सोशल एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए जब तुम कॉलेज में रहते हो। तो मैं मेरे कॉलेज के टाइम मैंने बहुत सारे एक्टिविटीज़ किया था, जैसे वो करंडक वगैरह रहता है मतलब हमारा सिंहगढ़ कॉलेज का। हाँ राइट। तो तब बहुत सारे मतलब एक्टिविटीज़ किया था। तब वो सर्टिफिकेट्स भी अटैच करके उनको भेजा, तो वो लोग ज़्यादा मतलब एडमिशन लेने के लिए काफ़ी आसान हो जाता है मतलब। तो ओके। एंड आपको फिर कैपजेमिनी से अपॉर्चुनिटी मिली फिर? पहले मैंने टेक महिंद्रा में काम किया, मेरा कैंपस प्लेसमेंट ही हो गया था, तो ऑलमोस्ट 3 साल मैंने वहाँ पर काम किया। फिर मुझे मैंने स्विच किया, मैं कैपजेमिनी में किया, फिर कैपजेमिनी में भी 1 साल किया। उसके बाद मुझे MS के लिए अपॉर्चुनिटी मिली और फिर मैं डबलिन चले गया उसके बाद। ओके। सो एक स्ट्रेट आउट क्वेश्चन है कि शुड यू परस्यू मास्टर्स डिग्री राइट आफ्टर द कॉलेज, या हाँ। फिर एक्सपीरियंस लेके ही जाना चाहिए, दैट इज मच बेटर? तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि एटलीस्ट 1 साल तो भी एज अ तुम्हारा जो फ्रेशर का टैग रहता है वो रिमूव हो जाता है। 1 साल तुमने अगर क्या जॉब का एक्सपीरियंस ले लिया तो तुमको एक आइडिया आ जाता है कि कंपनी में क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है, काम कैसा होता है, एक ओवरव्यू आ जाता है कि कैसे का एक्चुअली होता है पूरा प्रोसेस। तो मेरे ख्याल से तो भी एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस लेना ही चाहिए, और उसके बाद तुम अप्लाई कर सकते हो। और मतलब यहाँ पर अभी आयरलैंड के लिए प्रोसेस ऐसा है कि तुम आइल्स दे सकते हो या फिर टोफेल, और अभी इन्होंने ड्यूलिंगो भी स्टार्ट किया है। ड्यूलिंगो इज़ इंग्लिश टेस्ट। ओके। So during COVID times they have started these Duolingo exams and it's a very easy exam, so Okay. तुम्हारा जो एंट्री होना है वो और भी आसान हो जाता है। For IELTS like you have to prepare yourself like but Duolingo you can just have that mock exams and you can just analyze those the question patterns, and then you can get easily good marks in Duolingo. Okay. So yeah. So take us through the process of how do you go from India, you need to go and take an admission to Dublin, and then you study and then you get a job. So what is the full process of from getting into a college to passing out and having a job? Yeah. पूरा प्रोसेस क्या होता है, कैसे करना? सो मैंने जो किया था वो आफ्टर 11-12 मैंने इंजीनियरिंग की, 4 साल इंजीनियरिंग की। उसके बाद मैंने जैसे बोला कि मैंने कैंपस प्लेसमेंट थ्रू एक्सपीरियंस लिया, और मैंने जो प्रोसेस जो अप्लाई करना मेरा दो ज़्यादातर कंट्रीज़ का मैं सोच रहा था कि US जाऊंगा या फिर यूरोपियन में से आयरलैंड या जर्मनी। ओके। बट जर्मनी का सीन ऐसा था कि वहाँ पर तुमको क्या जर्मन लैंग्वेज आना इज़ काइंड ऑफ कंपलसरी, एंड मैंने वो किया नहीं था जर्मन का, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लग जाता, तो डिले हो जाता था। तो मेरे पास बचा ऑप्शन US और आयरलैंड का। तो आयरलैंड का प्लस पॉइंट ये है कि वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। Right. वहाँ पर तुमको कोई भी ऐसा आयरिश लैंग्वेज आना वगैरह वो कंपल्शन नहीं है। सो ये पूरे यूरोप में आयरलैंड ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर इंग्लिश मतलब ओवरऑल सब लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो वो एक प्लस पॉइंट था। और US में दो साल का मुझे मतलब मैंने अप्लाई किया था काफ़ी जगह, बट ऑलमोस्ट हर एक कॉलेज में मुझे 2 साल का कोर्स मिल रहा था मास्टर्स के लिए। Okay. और आयरलैंड में मुझे एक साल का ही मिल रहा था। तो मैं ज़्यादातर मतलब शॉर्ट कोर्स ही देख रहा था कि जो लेवल 9 कोर्सेज बोलते हैं मास्टर्स के लिए। तो आयरलैंड में मुझे 1 साल का ही कोर्स मिला, और कंपेयर टू US फीस भी काफ़ी कम थी वहाँ की। तो दैट्स वाई ऑप्टेड। मेरा US में भी हो गया था ऑलमोस्ट 2-3 यूनिवर्सिटीज़ को मैंने ट्राई भी किया था, वो वहाँ पर भी हो गया था। बट एक ओवरऑल सब देखा तो मुझे आयरलैंड बेस्ट लगा, और वहाँ पर मेरा फ्रेंड सर्कल्स और ऑलरेडी था, तो मैंने आयरलैंड चूज़ किया उसके लिए। और फिर मतलब
आपने आपके साइड से तो आयरलैंड ये चूज़ कर लिया, देन कॉलेज ने आपको परमिट दे दिया कि यस यू कैन कम एंड हैव द यू कैन टेक द एडमिशन, यू हैव द सीट। सो फिर अभी इसके बाद का प्रोसेस कैसा कि फीस पेमेंट, वीज़ा, फिर साल भर का वीज़ा चाहिए होगा, या सो वो तो सारा प्रोसेस। पहले वीज़ा अप्लाई करने के पहले तुमको हाफ एक थोड़ा कंफर्मेशन बोल के फीस सेंड करनी होती है कॉलेज को। ओके तो वो एक जस्ट लाइक अ डिपॉजिट अमाउंट रहता है कि एडमिशन कंफर्म करने के लिए। तो वो स्टार्टिंग में तुमको करना होगा, और उसका जो रिसीट वगैरह रहता है वो सब तुमको कॉलेज प्रोवाइड कर देता है। और फिर यहाँ पर तुमको VFS जो सर्विसेज है वो वीज़ा के लिए है। Okay. तो वहाँ पर तुमको वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देता है। तो वहाँ पर तुमको सब जो भी बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस रहता है आयरलैंड के लिए स्पेसिफिकली। तो वो सब डॉक्यूमेंटेशन एज़ पर उनके अकॉर्डिंग तुमको सीरियली मतलब ऐड करना होता है फाइल में। और मतलब उसमें मेनली जो कॉलेज का है वो ऑफ़र लेटर तुमको दिखाना रहता है कि तुमको ये कॉलेज से ऑफ़र लेटर आया है, तुमने इतना डिपॉजिट भी पे कर दिया है। और फिर तुम्हारा स्पॉन्सरशिप वगैरह देखते हैं, मतलब तुमको एक कॉस्ट ऑफ लिविंग बताना पड़ता है कि तुम्हारे पास बैंक बैलेंस वगैरह बताना पड़ता है। फाइनेंशियल तुमको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है जब भी तुम वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो। तो अगर तो इफ़ यू आर कैपेबल तो तुम्हारा खुद का बता सकते हो बैंक डिटेल्स एवरीथिंग, नहीं तो फिर तुमको स्पॉन्सर ऐड करना पड़ता है। ओके तो स्पॉन्सर का भी फिर तुमको पूरा लाइक ITR वगैरह वो सब डॉक्यूमेंट्स आएंगे। 3 साल का ITR ऑब्वियसली पूछते हैं वो लोग। फिर तुम्हारा बैंक बैलेंस कि तुम वहाँ पर जाकर 1 साल के लिए, मैं सपोज अभी 1 साल का कोर्स है तुम्हारा, तो 1 साल के लिए तुम वहाँ की कॉस्ट पूरा अफोर्ड कर सकते हो, वो पूरा बताना पड़ता है। तो फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रांग रहना पड़ता है। और आज मतलब रिसेंट टाइम्स में वीज़ा ऑफिसर आर कॉलिंग स्टूडेंट्स कि तुम सपोज आयरलैंड ही क्यों जाना चाहते हो, वहाँ पर तुम कोर्स कौन सा ले रहे हो, फिर वहाँ यहाँ पर तुम्हारा बैकग्राउंड क्या था, फिर वहाँ पर पूरा मतलब डिटेल्स में जा रहे हैं वो लोग आजकल। तो पहले वो लोग कॉल नहीं करते थे, बट अभी तुम्हारा एक शॉर्ट इंटरव्यू भी लेते हैं वो लोग, और फिर वो हिसाब से तुम्हारा वीज़ा भी अप्रूव होता है। तो हाँ, डॉक्यूमेंटेशन बहुत है। मतलब मैं अभी मुझे याद भी नहीं डॉक्यूमेंट्स कौन से लगे थे, बट मैं एटलीस्ट मेरी 2000 पेजेस की फाइल्स बन गई थी। यहाँ इतना डॉक्यूमेंटेशन लगा था। तो डॉक्यूमेंटेशन इज़ टू मच फॉर आयरलैंड बेसिकली। या और फिर उसके बाद यू गो टू द कॉलेज, यू परस्यू योर डिग्री, और फिर उसके बाद जब प्लेसमेंट होगा, सो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेसमेंट का क्या सीन होता है, लाइक से सो प्लेसमेंट हमारे यहाँ जैसे होता है वैसा बिल्कुल भी वहाँ पर होता नहीं है। कि कॉलेज के बाद कैंपस ड्राइव होता है, फिर कंपनीज आती है, फिर तुमको इंटरव्यूज़ वगैरह देना होता है, वैसा नहीं है। वहाँ पर मोस्टली तुमको खुद से ढूंढना होता है। वहाँ पर लिंक्डइन है, इंडीड है, और वहाँ के लोकल कुछ साइट्स है, वहाँ पर तुमको अप्लाई करना होता है। वहाँ पर तुमको प्रॉपर मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग तुम्हारा CV बनाना होता है। और मोस्टली हर एक जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग तुमको तुम्हारा CV भी चेंज मतलब वो हिसाब से बनाना पड़ता है। क्योंकि अभी क्या हो गया है, अभी ATS के थ्रू ATS ट्रैकर रहता है, तो वो ट्रैक करते हैं हर CVs कि अगर तुम्हारा CV ATS से ट्रैक हो गया तो ही आगे फॉरवर्ड होता है कंपनी में, नहीं तो ATS अगर तुम्हारा जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग CV नहीं बना है तो वहीं पर वो रिजेक्ट हो जाता है। तो व्हाट इज ATS? that is a tracking system. Like it checks whether that particular candidate is suitable for that particular job or not. So वो अभी आजकल बहुत सारे टूल्स आ गए हैं जहाँ पर तुम्हारा CV भी चेक कर सकते हो कि ATS के अकॉर्डिंग बना है या नहीं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टार्टिंग में हमको मतलब कोई गाइड करने वाला नहीं था CV कैसा बनना है वगैरह। तो मेरे बहुत सारे दोस्त लोगों ने मतलब कंसल्टेंसी के थ्रू अप्रोच किया, क्योंकि कॉल्स बिल्कुल आते ही नहीं है अगर तुम्हारा प्रॉपर CV नहीं बना है। तो मेरे हिसाब से एक प्रॉपर CV बनना तुम्हारा
is a very important part during your job hunt. ओके और फिर वहाँ पर जब कॉल आता है हमें कि शेड्यूल फॉर एन इंटरव्यू और समथिंग लाइक दैट, सो फिर वहाँ पे हमारे प्लेसमेंट जैसे होता है या एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर जीडी, फिर टेक्निकल देखो अभी अगर तुम फ्रेशर हो तो ऑब्वियसली तुम्हारा एप्टीट्यूड एग्ज़ाम होगा, तुम्हारा सब बेसिक जैसे यहाँ पर होता है जीडी होगा, फिर तुम्हारा प्रॉपर टेक्निकल इंटरव्यू होगा, फिर क्योंकि तुम फ्रेशर हो ना, ऑब्वियसली वो तुमको हर एक इसमें चेक करेगा कि तुम सुटेबल हो या नहीं. तो बट डिपेंड्स लाइक तुम अगर एक्सपीरियंस्ड हो तो ऑब्वियसली तुम्हारा एक्सपीरियंस देखकर वो डायरेक्टली उनको समझ जाएगा कि तुमको पता है ये सब काम क्या है क्या नहीं, और तुम्हारा जॉब मतलब इंटरव्यू इजी हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग. सो लाइक डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस आई विल से. ओके नाइस. तो फिर वहाँ पर एक बार तुमने जॉब लैंड कर लिया, देन व्हाट इज़ द वीज़ा सिचुएशन? क्योंकि आपने जो 1 साल का वीज़ा निकाला था अभी वो तो स्टडीज़ के बाद तो ख़त्म हो गया. बराबर. तो वीज़ा में सबसे पहले अगर तुम एमएस करने जाते हो तो तुमको स्टैम्प टू वीज़ा मिलता है. तो स्टैम्प टू वीज़ा इज़ अ स्टूडेंट वीज़ा. सो इट इज़ वैलिड एज लॉन्ग एज यू आर अ स्टूडेंट. सो दैट इज़ अ स्टैम्प टू वीज़ा. सो अगर स्टूडेंट वीज़ा फिर एक बार तुम्हारा कॉलेज ख़त्म हो गया तो उसके बाद तुमको मिलता है स्टैम्प 1G. सो दैट इज़ योर ग्रेजुएट वीज़ा कि तुमने अभी ये कंट्री से एमएस कर लिया है, अभी तुम जॉब ढूंढना स्टार्ट कर सकते हो. तो उसके लिए 1G मिलता है. एंड ऑलमोस्ट ऑल कंपनीज 1G या फिर स्टैम्प 1 देखती है, मतलब अगर जॉब लेना है तो 1G के लिए तुमको दो ईयर्स का देते वो. तो 2 ईयर्स के लिए स्टैम्प 1G बोलते हैं. दैट इज़ योर ग्रेजुएट वीज़ा. हाँ. तो दैट इज़ स्टे बैक वीज़ा बेसिकली कि तुमने अभी यहाँ से एमएस कर लिया है, अभी 2 साल तक तुम इस कंट्री में रह सकते हो, जॉब ढूंढ सकते हो. ओके वैसा. फिर स्टैम्प 1G के बाद तुमको कंपनीज को रीच आउट करना है. फिर एक बार अगर तुम जॉब लैंड कर लिए और फिर कंपनी तुमको जनरली 6 मंथ का प्रोबेशन रहता है, उसके बाद तुमको स्टैम्प 1 स्पॉन्सर करती है. तो स्टैम्प 1 इज़ तुम्हारा क्रिटिकल स्किल वीज़ा. ओके. तो क्रिटिकल स्किल वीज़ा में क्या होता है कि तुम वो कंपनी के लिए काम कर रहे हो पर्टिकुलर, तो वहाँ पर वो 2 साल के लिए मिलता है स्पॉन्सरशिप. बोथ वेज है वो. तुमको खुद से भी स्पॉन्सर कर सकते हो अगर कंपनी स्पॉन्सर नहीं कर रहा है तो. नहीं तो फिर ऑलमोस्ट सब कंपनीज वैसे स्पॉन्सरशिप मिल जाती है. और क्रिटिकल स्किल वीज़ा ये कुछ पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ के लिए ही रहता है, जैसे आईटी हो गया या जो मेडिकल में जो नर्सेस वगैरह हो गया, डॉक्टर्स हो गए, उन लोगों के लिए कुछ लिस्ट है. अभी मुझे पता नहीं, वो बहुत सारे कैटेगरीज है उसमें. तो उन लोगों को ही स्टैम्प 1 स्पॉन्सरशिप मिल सकता है. बाकी लोगों को लिए जनरल वीज़ा मिलता है. मतलब वो स्टैम्प 1 ही रहता है लेकिन वो 5 साल के लिए रहता है. मतलब ये क्रिटिकल स्किल्स पे अगर तुम 2 साल निकाल लिए तो तुमको डायरेक्टली वहाँ का स्टैम्प 4 मिलता है. स्टैम्प 4 इज़ जस्ट लाइक अ रेसिडेंटशिप ओनली. लाइक यू कैन कम एनी टाइम in that country and you can live anytime in that country. So getting stamp 4 is like crucial. You have to spend at least 2 years on stamp 1. Stamp 1 is critical skills. Okay. Yeah. और वो जो दूसरा जनरल कैटेगरी वाला है वहाँ पर तुमको एटलीस्ट 4 से 5 साल स्पेंड करना होता है और फिर तुमको स्टैम्प 4 मिलता है. सो ये पूरा मतलब वीज़ा का वहाँ का स्टेटस है अभी फ़िलहाल. ओके. एंड फिर हम अगर फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देखें, थोड़ा इकोनॉमिक साइड से, सो व्हाट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन? मतलब हमारे यहाँ पर इतना टैक्स होता है तो फिर वहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूशन है कि एक पर्टिकुलर सैलरी पे कितना टैक्स लगता है या फिर? हाँ, वहाँ पर जनरली 20% टैक्स तो है ही नॉर्मली. और एक सर्टेन अमाउंट के बाद अगर तुम सपोज लाइक आई थिंक इट्स अराउंड 36,000 euros. After that you will be getting deducted 40% tax. And beyond 36,000 40% tax. Yeah. So और भी है उसमें कुछ PRSI वगैरह USC उनका रहता है. 8% वो डिडक्शन होता है. टैक्स वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है वहाँ का टैक्स का जो है. तो
you can consider like 20% for 36,000 euros, and then after 36,000 you will be deducting 40%. 40%. It keeps on changing, but generally 40% तो जाता ही है बाद में वैसे. नाइस. अभी अगर जब हम अभी पास आउट हो गए, प्लेसमेंट्स हो गया, सो फॉर अ फ्रेशर एंड अ स्टूडेंट हु हैज़ एक्सपीरियंस प्रायर टू स्टडिंग, सो फिर उसके सैलरी में तो भी कितना डिफरेंस होता है? लाइक एक फ्रेशर बाहर निकला तो उसकी बेसिक सैलरी, एवरेज सैलरी क्या होती है? हाँ, तो फ्रेशर को यू कैन कंसिडर अराउंड लाइक फॉर ग्रेजुएट रोल्स इट टेक्स अराउंड 30,000 euros for a graduate role. Okay. And if you have mid experience, like mid, I will consider around 4 to 5 years. So it will be around something around 50 to 60k euros. And then अगर तुमको अच्छा experience है more than 10 years, then obviously you can earn around 1 lakh euros. So it really depends on experience to experience. अभी मैं ये पूछना चाहूँगा कि लाइक आपने वहाँ पर 1 साल पढ़ाई की, फिर 1 साल जॉब भी किया, सो बेसिक क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ स्टडिंग अब्रॉड? See, pros and cons, like pros obviously तुमको एक नया कल्चर सीखने को मिलता है वहाँ का. फिर तुम अगर अच्छा एक्सप्लोरर हो तो तुमको अच्छा एक्सप्लोर करने को भी मिलेगा बाहर. और ऑब्वियसली पैसे ज़्यादा है यहाँ से. पैसे कमाना है तो आ सकते हो बाहर. और cons I will consider as food, mainly food, because you have to manage yourself. Like there are Indian restaurants, but the taste is not that good. Like they generally that people doesn't eat, they don't eat spicy food. Okay. So and we are Indians, so we love spicy food. So you have to compromise for the food. तो फूड, और मेनली तुमको तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना होता है, क्योंकि सब काम तुमको खुद से ही करना होता है. वहाँ पर तुम्हारा क्या बोलते हैं, खाना बनाना वगैरह तुमको अच्छे से आना चाहिए. और मतलब बाहर भी मिलता है फूड, लेकिन तुम रोज़ बाहर का नहीं खा सकते हो, ऑब्वियसली बहुत कॉस्टली है वहाँ पर. और सो वही फूड इज़ वन ऑफ द drawback. Like you have to compromise food for living abroad. ओके. एंड फिर जो हम जॉब करने जहाँ पर चाहते हैं, लाइक सो व्हाट इज़ द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ओवर देयर, या फिर वर्क फ्रॉम होम ही होता है हर बार? नहीं, अभी उन्होंने हाइब्रिड वर्क स्टार्ट कर दिया है. ऑब्वियसली ड्यूरिंग कोविड टाइम्स इट वाज टोटली वर्क फ्रॉम होम, बट अभी हाइब्रिड हो चुका है. लाइक वीक में एटलीस्ट 2 बार तुमको ऑफिस जाना है और 3 बार तुम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो. और वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी अच्छा है. तुम सिटी बसेस मिलता है. स्टूडेंट के लिए स्पेशल कार्ड होता है, लीप कार्ड बोलते हैं उसको. कि तुम वो कार्ड सिटी बसेस में भी यूज़ कर सकते हो, वहाँ के मेट्रोज़ में भी यूज़ कर सकते हो. वहाँ के ट्रैम्स जो है, वहाँ के जो मेट्रोज़ है उसको डार्ट बोलते हैं वो लोग, और ट्रैम्स वगैरह इस बेसिकली सिंगल कार्ड है. और वहाँ पर बेस्ट मुझे ये चीज़ लगी है कि फॉर स्टूडेंट्स दे ओनली कॉस्ट 1 euro फॉर 90 minutes. सो तुम बस से भी ट्रैवल करो या तुमको चेंज करना है डार्ट में या मेट्रो में, तो तुमको वही 1 euro कंटिन्यू होगा फॉर योर डार्ट एंड मेट्रो. सो फॉर 90 minutes दे ओनली चार्ज 1 euro. देन तुम कितना भी ट्रैवल कर सकते हो. सो अनलेस एंड अनटिल एक डे में समझो मैंने 30 मिनट से ट्रैवल किया, नहीं, कंटिन्यूएशन में तुमको 90 मिनट्स तक फ्री मिलता है. और वहाँ पर कैपिंग भी रहता है. अगर सपोज पर डे का 2 euros का कैपिंग रहता है, उसके बाद तुम्हारे कार्ड से कुछ भी पैसा नहीं कटेगा, तुम कितना भी ट्रैवल कर लो. ओके. सो लाइक इट इज़ लाइक अ पास कि 2 euro का एक बार पास टाइप्स कुछ खरीद लो. हाँ, बट दिस इज फॉर स्टूडेंट. फॉर नॉर्मल इट्स लाइक डबल. ओके. सो स्टूडेंट्स ऑफ their country itself or all No, students? for every international students as well as local students. For Okay. everyone they have the same policy. Now coming back to our side of economic part. So जब हम एडमिशन की फीस लेने जाते हैं तो बहुत से लोग होते हैं जिनका फिर कोई लोन लेता है या फिर किसी का इकोनॉमिकल कंडीशन उतना अच्छा नहीं होता है. सो फिर उस केस में हाउ शुड ही प्रिपेयर टू गो टू अब्रॉड कॉलेज? हाँ, तो उस रिगार्ड्स तुम 2 up to 2 स्पॉन्सर तुम्हारे
वीज़ा एप्लीकेशन में अटैच कर सकते हो। तो तुमको फर्स्ट स्पॉन्सर से कुछ मतलब बेसिकली तुम्हारे ब्लड रिलेशन में ही चाहिए रहता है, एदर योर मॉम डैड और जो भी तुम्हारे ब्लड रिलेशन में Okay. तो 2 स्पॉन्सर तुम ऐड कर सकते हो। दोनों का भी जितना अर्निंग्स है तुम एज अ स्पॉन्सर ऐड करके तुमको अप्लाई करना होता है। तो हाँ या वैसे तुम कर सकते हो। एंड इसमें कोई गवर्नमेंट का कोई पार्ट होता है, लाइक दे प्रोवाइड सम फंड, और फिर वहाँ का गवर्नमेंट एक्चुअली स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करते हैं, Okay. बट यू हैव टू शो योर टैलेंट फॉर दैट, लाइक यू हैव टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑब्वियसली। एंड कुछ शायद अप्रैल या कुछ मंथ है, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं, तब उनका स्कॉलरशिप्स का भी फॉर्म आता है। तो वहाँ के यूनिवर्सिटीज़, वहाँ के जो भी कॉलेजेस है वो फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप भी देते हैं, और वहाँ के एक्सपेंसेस के लिए तुमको स्टाइफंड भी मिलता है वहाँ के गवर्नमेंट से। सो तुम स्कॉलरशिप के फॉर्म भी फिल कर सकते हो। ओके। एंड हमारे गवर्नमेंट के साइड से कुछ फंडिंग, या फिर लाइक फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट साइड ऐसा कुछ स्कीम होता है जहाँ हम शायद अप्लाई करें? इंडियन गवर्नमेंट भी कर रही है अभी स्पॉन्सर्ड, बट उनका क्राइटेरिया काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लाइक तुमको, और वो बहुत कम रेशियो है, जो मतलब बहुत कम लोगों के लिए वो स्पॉन्सरशिप देते हैं। Okay. वैसा लाइक मैंने सुना है कि शायद दे पे सम काइंड ऑफ 10% और समवॉट फीस ऑफ आर इकोनॉमिक पूरा जो स्टैंड है, एंड फिर you go to abroad, you study, then you work for 2-3 years, and then you have to come back and हाँ, वैसे भी कुछ अभी स्कीम्स है, लेकिन लाइक उसके बारे में मैंने इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं है, बट है अभी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, स्कॉलरशिप्स भी मिल रही है अच्छी खासी, और गवर्नमेंट भी अच्छा खासा फंड रेज कर रहा है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और फिर वहाँ के कॉलेजेस का स्टैंडर्ड यहाँ के कॉलेजेस के स्टैंडर्ड से कितना डिफरेंट होता है? लाइक कॉलेज का स्टैंडर्ड ऑब्वियसली वहाँ पर जो स्टडी है वो काफ़ी मतलब डिफरेंट है यहाँ के कंपैरिजन में। वो लोग ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम्स ज़्यादा कंडक्ट करते हैं। Okay. और मतलब टू बी ऑनेस्ट, लाइक they teach as per the course, like what you have opted. It depends on that totally. So फ्रॉम कोर्स टू कोर्स डिपेंड करता है। लाइक मेरे केस में बिजनेस एनालिस्ट के लिए उन्होंने मुझे काफ़ी बेसिक से सिखाया, बेसिक्स टू एडवांस। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा वहाँ का कोर्स बिजनेस एनालिटिक्स। सो डिपेंड करता है, वैरी करता है तुम कौन सा कोर्स ले रहे हो और वो कैसा मतलब मेरे कॉलेज के लिए ऑलमोस्ट हर एक कोर्स अभी मेरे फ्रेंड्स है वो बताते हैं कि काफ़ी बेसिक से उनको सिखाया, मतलब फ्रॉम ज़ीरो नॉलेज एंड टू ना एडवांस लेवल अच्छे से उनको मतलब गाइड कर देते वहाँ के टीचर्स। राइट। एंड दीज ऑल कंडीशंस आर ट्रू फॉर MBA साइड और मैनेजमेंट साइड स्टडीज एज वेल? ऑब्वियसली फॉर MBA साइड एज वेल। ओके। एंड फिर जब हम वहाँ पर जाते, सो फिर वहाँ पर अगर हम चाहे लाइक इकोनॉमिक कंडीशन मुझे थोड़ी मेरी रेस करनी है, या फिर टू मीट द नीड्स ऑफ द डे, लाइक पार्ट टाइम करना है या कुछ करना है, सो फिर ऑब्वियसली फॉर डेली एक्सपेंसेस यू विल हैव टू डू पार्ट टाइम, लाइक so there are many opportunities in part time job as well. So generally बहुत सारे लोग कस्टमर असिस्टेंट का जॉब भी करते हैं, मतलब जो भी टिल वगैरह पे काम करते हैं। वहाँ पर बहुत सारे शॉप्स है, जैसे मतलब लीडल हो गया, अल्डी हो गया, वहाँ के मतलब अपने यहाँ पर कैसे डी बार्ट रहता है वैसे, हाँ सुपर मार्केट्स। तो बेसिकली सुपर मार्केट्स में बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल होते हैं, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मोस्टली सुपर मार्केट्स में करते हैं। और एक मुझे जो अच्छा लगता है वहाँ पर तुम सिक्योरिटी का जॉब कर सकते हो। सो यू हैव टू अप्लाई फॉर लाइसेंस फॉर सिक्योरिटी जॉब। सो वो काफ़ी इजी होता है, तुमको जस्ट CCTV वगैरह मॉनिटर करना होता है, और पे भी काफ़ी अच्छा देते हैं। सो है पार्ट टाइम जॉब्स है, अच्छा खासा है, और तुम उस पार्ट टाइम जॉब के मनी से वहाँ पर
इजीली अकोमोडेशन और जो भी तुम्हारा डेली एक्सपेंसेस है वो कवर कर सकते हो. ओके. एंड फिर लाइक पार्ट टाइम, मैंने सुना है कि पार्ट टाइम ऑलमोस्ट कंपलसरी ही हो जाता है, लाइक सब लोग कर ही लेते हैं पार्ट टाइम. हाँ. आई डोंट नो हाई बट. हाँ, मतलब अभी वहाँ ऑब्वियसली अपन रुपीज़ में स्पेंड करते हो तो वहाँ पर यूरोज़ है. यूरोज़ काफ़ी महंगा है कंपेयर टू रुपीज़. सो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में लगता है काफ़ी कॉस्टली है कंट्री. तो उसके लिए बेसिकली जो भी मिडिल क्लास से बिलोंग करता है तो वो ऑब्वियसली पार्ट टाइम करता ही है वहाँ Okay. पर ऑलमोस्ट. नाउ व्हाट काइंड, लाइक आपका ये था कि बिजनेस एनालिटिक्स वाज योर प्रोफाइल, या ये डिग्री आपने करी. सो व्हाट काइंड्स ऑफ जॉब्स वी कैन लैंड यूजिंग दैट सर्टेन डिग्री. या तो मेरे केस में मेरा क्या हुआ था, मैंने जो पहले एक्सपीरियंस लिया था तो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उसी के अकॉर्डिंग मेरे इंटरव्यू शेड्यूल हो रहे थे. तो मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली एज अ बिजनेस एनालिस्ट के इंटरव्यूज़ देने के लिए. बट मुझे पहले के जो मेरा जो प्रोफाइल था उसके अकॉर्डिंग जॉब मिला. तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वहाँ पर वो लोग ज़्यादा तुम MS किस चीज़ में कर रहे हो वो ज़्यादा देखते नहीं है. Okay. तुम्हारा एक्सपीरियंस किस चीज़ में था वो मैटर करता है. तो इसीलिए एटलीस्ट 1-2 साल का एक्सपीरियंस जो भी तुम्हारा है उसके अकॉर्डिंग तुम जॉब लैंड अप कर सकते हो. तो वही. ओके, सो प्रीवियस एक्सपीरियंस उसके बेसिस पर भी जॉब लैंड हो सकता है, या फिर जो आपने नया सीखा उसके बेसिस पर भी जॉब लैंड हो सकता है. हाँ बिल्कुल. सो फिर जो एक प्योर मैकेनिकल बैकग्राउंड से होगा वो अगर चाहे तो कोडिंग में भी जॉब लैंड कर सकता है इफ़ ही हैज सर्टेन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, या फिर वो उस टाइप की डिग्री करता है. या बिल्कुल वो जॉब लैंड कर सकता है. बट सिर्फ उसको अपस्किल करना पड़ेगा. अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड्स है, जो स्किल्स है, टेक्नोलॉजीज़ है, वो उसको सीखना होगा और उसके अकॉर्डिंग वो कर सकता है. फिर यही पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस, लाइक आयरलैंड से इंडिया में अभी आप आए हो 1-2 महीने के लिए. सो व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस यू फील? मेजर डिफरेंस इज क्लाइमेट चेंज. Okay. ऑब्वियसली वहाँ पर क्लाइमेट 3 डिग्री 4 डिग्री तक होता है विंटर Okay. में. अभी तो भी मुझे इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है क्योंकि वहाँ पर समर जस्ट एंड हुआ है और समर में वहाँ पर टेम्परेचर रहता है अराउंड 15-16 डिग्री. और यहाँ पर भी काफ़ी ठीक है. अभी विंटर चालू है तो ऑब्वियसली 18-19 डिग्री है यहाँ पर टेम्परेचर. सो द ड्रास्टिक चेंज इज द क्लाइमेट. And Irish weather is really ridiculous, you know, like you can have all season in one day. Like there will be rain, summer, like sun and winter, Okay. everything in one day. मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पर शायद विटामिन डी का बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट. या सो तुमको तुम्हारे मल्टीविटामिन्स, तुम्हारे विटामिन डी जो जितने भी है वो तुमको कैरी करना रहता है. उसका कोर्स प्रॉपरली करना होता है और मोस्टली वहाँ पर लोग सब एक्सटर्नली लेते हैं विटामिन्स वगैरह. तो ऑब्वियसली वहाँ पर सनलाइट कम है तो तुमको विटामिन डी लेना ही होता है. एंड व्हाट इज़ द स्पोर्ट्स सिचुएशन लाइक इन कॉलेज? मतलब वहाँ हमारे, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने देखा है, मैं कॉलेज में हूँ, स्पोर्ट्स मतलब 10th के बाद 11th-12th के बाद तो ऑलमोस्ट नलीफाई हो जाता है. कोई खेलता नहीं या फिर उस लेवल का स्पोर्ट्स होता नहीं है. सब प्लेसमेंट और उसके पीछे होते हैं. सो फिर वहाँ पर कॉलेजेस में कोई स्पोर्ट इवेंट्स वगैरह कुछ होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल. वहाँ पर मैं MS करते टाइम भी काफ़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती थी और मतलब कॉलेज खुद सबको इनकरेज करता है कि ये एक्टिविटीज़ है, पार्टिसिपेट लो. और ऑब्वियसली वहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन है तो तुमको तुम अगर अच्छा खेलते हो तो तुम एक अच्छे उनके नेशन वाइज भी तुम खेल सकते हो उनके. तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है और वहाँ पर क्रिकेट इतना चलता नहीं है. तो ऑब्वियसली जो अपने इंडियंस स्टूडेंट रहते हैं तो वो क्रिकेट में काफ़ी अच्छा उनका पार्टिसिपेशन होता है और वो काफ़ी लोग अच्छे मतलब वहाँ के जो काउंटीज़ बोलते हैं, मतलब अपने यहाँ पर जैसे स्टेट्स रहते हैं वहाँ पर काउंटीज़ रहते हैं तो काउंटीज़ बैच तक पहुँच गए हैं और मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं क्रिकेट पे. तो है काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है स्पोर्ट्स के लिए भी. और एंड बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आल्सो यू कैन प्ले
from that country. या ऑब्वियसली सो तुमको सिर्फ तुम्हारा वीज़ा का सॉर्ट करना होता है और अगर तुम खुद अगर रेडी हो तुम्हारा सिटीजनशिप चेंज करने तो तुम बिल्कुल वो कंट्री से भी तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो. राइट. एंड फिर एक लास्ट क्वेश्चन, लाइक जो भी बच्चे वहाँ पर जाते हैं तो फिर नॉट कंपलसरी ना कि बच्चे फर्स्ट टाइम, कोई फर्स्ट टाइम ही बाहर जाता है घर से, हाँ क्योंकि उसका कॉलेज भी होम टाउन में होता है बेसिकली, बीटेक या फिर 11-12 ऐसा कुछ, तो फिर वो होम सिक हो गए या कुछ हो गया, सो व्हाट इज दैट कंडीशन? हाँ तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली. सो बहुत लोग जो फर्स्ट टाइम बाहर जाते हैं कंट्री से, तो और जो लोग पहले से घर पे ही रहते हैं, मतलब जिनका कॉलेज पास में होता है घर के वगैरह, तो वो लोग काफ़ी होम सिक थोड़ा सा फील करते हैं. बट उनके लिए मेरा एक ही ओपिनियन है कि बहुत सारे कम्युनिटीज़ है अपने ही वहाँ पर, उनके साथ मिलो, मतलब उनके साथ पार्टिसिपेट लो. हर एक वहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे अभी रिसेंट गणपति फेस्टिवल हुआ था, तो वहाँ पर भी अपना ढोल वगैरह सब रहता है, वो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो. और मतलब अपनी भी कम्युनिटी काफ़ी अच्छी है वहाँ पर, और बहुत सारे इंडियंस आ रहे हैं अभी फ़िलहाल. सो डेफिनेटली थोड़ा इश्यूज आता है स्टार्टिंग में, बट टाइम के अकॉर्डिंग वो कोप अप होके. So thank you sir for talking to us and coming to my show. Yeah. I hope you do the best.